And chalo, let's start today's class. Let's go back to the just 1 minute. Can someone remember what is the lecture number for micro today? Lecture number, anyone? 13, I guess. Okay, thank you. So lecture number 13, microeconomics. We are starting. Market we were doing, perfect competition. I have given some homework. Before asking me what was the homework I gave, I would just like to just so where did we stop in the last class. I think we have done all these things. Yeah, we were doing these things. Now I remember what I gave you the homework, and nobody has did that homework, right? हाँ, now I remembering. I told कि draw the 6 diagram. ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों को 6 डायग्राम ड्रॉ करना है और कुछ के डेफिनेशन मैंने बोला था. तो लेक्चर नंबर 13, please write it down. If somebody has pen and paper, 1 or 2 basic numerical we will also do. And लेक्चर नंबर 13 में आप देखेंगे कि HW में क्या था. HW में आई टोल्ड कि 6 डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. 3 डायग्राम होंगे आपके TRTC अप्रोच के, दैट आई विल बी ड्रॉइंग, नो नीड टू वरी. इवन इफ यू हैव नॉट डन, नो नीड टू वरी. एंड आपके जो और 3 डायग्राम होंगे वह MRMC अप्रोच के होगा, 3x3 6. Apart from that, I have given you some homework to define something. So homework में next part था define. 3 or 4 definition I gave you. I remember. I told you what is the difference between accounting cost, sunk cost का definition आप लोगों में से many people told, and we have also explained accounting cost. Next definition I asked you कि what is economic cost. Economic cost. After that we had I think explicit cost. And next, anyone? Implicit cost. चलिए, so apply your brain, apply your knowledge, and just give the single definition, basic difference. What is accounting cost, what is economic cost, what is explicit, what is implicit cost. If you know this, then only you can understand supernormal profit, normal profit. So to understand normal profit, you must know all these definition. चलिए, anyone? So let's start first. Let's write first one, accounting cost. Anybody here from commerce background? I would really love if you guys can just tell the thing what is accounting cost. Anybody just tell yes sir, I am from this commerce background and I have some idea about accounting cost. Anyone, please? सर Go. कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, पर मुझे अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में पता है. हाँ बताइए. सर इसमें हम जितने भी ना जो कॉस्ट में अकाउंट से रिलेटेड जो कॉस्ट में उसको कैलकुलेट करते हैं, जितने भी सर वो करंट जो बोलते हैं नगद भुगतान हो, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में. कोई नहीं, ठीक है. नगद भुगतान बताइए, कैश वाला. हाँ, और गैर संसाधन आगत हो, और मतलब सर जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उस सब की कॉस्ट को कैलकुलेट करके ऐड करते हैं इसमें. तो या सो आई वुड लाइक टू, नाइस सॉन्ग आपके बैकग्राउंड में अच्छा गाना प्ले हो रहा था. चलिए कोई बात नहीं है. व्हाट सी टोल्ड इट्स ऑलमोस्ट देयर, बट दैट इज द टिपिकल कॉमर्स थिंग, दैट्स व्हाई आस्क्ड. सो यू नीड टू नो फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट. इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं होता. ऑल द मॉनेटरी थिंग्स, जितना भी मॉनेटरी थिंग्स है, ठीक है, जितना भी मॉनेटरी थिंग्स हुआ, which can be considered as the part of accounting cost. जैसे for example, to produce a, suppose that we are using our laptop or mobile. So to produce a mobile, what you need some input. जो भी लगे, स्टील लगे, आयरन लगे, एल्यूमिनियम लगे, whatsoever that raw material you need. Then you need labor, then you need distribution, then you need marketing, and then you need sales. Each and everything requires some money, be it crores, be it lakhs, or be it hundreds. कुछ तो रुपीज चाहिए आपको ना. So when we consider all the monetary things, whatever is required, be it a single rupees even, ठीक है, चाहे वो single rupees क्यों ना लगे, just a minute, yeah, single rupees क्यों ना लगे, एक एक चीज, that will be the part of accounting cost. इसका सिंपल सा डेफिनेशन है इन इकोनॉमिक्स. अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब हुआ. सो क्लियर आप? हाँ प्लीज. एग्जैक्टली, दैट आई विल कम टू यू. टोटल कॉस्ट में भी आपको कंफ्यूजन है. ओके,
What about then economic cost? Economic cost doesn't matter that. What about economic cost then? बताइए। तो हो गया ना। हाँ प्लीज सरोज। सर अकाउंटिंग से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस किया जाता है। एग्जैक्टली माइनस किया जाता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट क्या होता है बताइए अब आप। नहीं नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या होता है, दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू सी। हाँ अभी देखिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। वी सब्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम अकाउंटिंग। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, सो दिस विल गिव यू इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। द बेसिक डिफरेंस, सी लेट मी जस्ट ड्रॉ ए ट्रायंगुलर फॉर्म, देन इट विल बी बेटर। थोड़ा सा इसको क्लियर और करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है। नाउ यू सी, फर्स्ट एट द टॉप which considers each and everything that is accounting cost. Accounting cost. Accounting cost has two part, explicit cost as well as implicit cost. अब आप लोग यह बताइए, anyone, what is implicit cost? Anyone, what is actually implicit cost? Please guys, anyone? Exactly, yeah, turn off your mic. Exactly, that is the perfect definition. Opportunity cost of inputs. तो यहां पर opportunity cost का मतलब क्या हुआ, anyone? What is opportunity cost? What is opportunity cost? देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। Okay, that is the bookish definition that I told you. Suppose that I am having a company, I have a firm, or I am having a company, and I work as here the director of that company. I am also the owner of that company, and in order to produce something, I consider कि 1 lakh rupees I spend, चाहे आप इनपुट में हो, लेबर में हो, whatsoever. Here in 1 lakh, I did not consider my own salary. I did not consider my own salary because I am the director, I am the firm owner, everything me only. But if I hire some director, suppose that charge is 20 rupees per director. So director will take 20,000 rupees for the firm or CEO. Let's consider CEO. But I am playing the role of CEO because I consider myself as the CEO as well as the owner of this company. So I am not going to give my self salary, right? So this 20,000 is my opportunity cost. Opportunity cost का मतलब next best alternative या second best alternative, means if I would not be working for myself, suppose that as a CEO or as a director अगर मैं अपनी firm में काम नहीं करता तो I would be working in some other company or I would be working in some other IT sector or somewhere जहाँ पर कि मुझे salary मिलती Rs 20,000 rupees, right? So that salary is known as implicit cost, which is already included in the part of that firm or production process. As I don't see because I am already working. Suppose that you ask your mom, many of you had cook and all, but mom किसी के घर में होगी जिनके पास cook नहीं होगा तो mom ही खाना बनाती होगी, मम्मा बनाते होंगे या कोई भी होंगे. Did you ask mama, did you get the salary? No, she is not taking the salary. But if you consider the implicit cost, suppose that if you hire a cook, maybe male or female, जनरली जो बाहर में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, सपोज दैट 5,000 रुपीज यू पे, तो दैट द इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर दैट मॉम को आपको 5,000 हो गया वह कॉस्ट. क्लियर? एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट? दैट्स व्हाई इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. दिस थिंग इज मिसिंग व्हेन वी कंसिडर इकोनॉमिक कॉस्ट. अब देखिए क्लियर हो गया. अकाउंटिंग कॉस्ट कंसिडर एक्सप्लिसिट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली विजिबल इन नेचर, ठीक है, डायरेक्टली विजिबल इन नेचर, VISIBLE, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसिडर इनविजिबल. मैं खुद कंपनी का डायरेक्टर हूं, आई एम द सोल ओनर एंड CEO ऑफ दैट, आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 20,000 Rs 20,000 for this expenditure. So here that is called invisible, which is not taken into account generally. But when you see in the terms of accounting cost, then you have to consider explicit cost as well as implicit cost. अब यहाँ से simple हो गया. That's why economic cost if you have to find, यह हो सकता है न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए,
अगर आपको इकोनॉमिक कॉस्ट निकालना हो तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज नथिंग बट द अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस implicit cost. Any doubt? Shall we move ahead? Please. Good. अब देखिए, जब आपको इकोनॉमिक कॉस्ट समझ आ गया, दैट्स वाई इट इज नॉन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट, और इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट द प्रॉफिट विच इज इक्विवेलेंट टू योर इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज दैट वी हैव डन, अभी मैं 6 का 6 डायग्राम करूंगा. जस्ट यू गाइस जस्ट गिव मी द एग्जांपल. सपोज दैट, अरे यार जस्ट ए मिनट. Suppose that this is our x-axis, this is y-axis, okay, and this is your AR, MR, whatever you guys consider. वही है ना, AR equals to MR equals to P, and here you have this is your, suppose that, total cost, and this is your, sorry, this is average cost, my bad, obviously you safe na, so this is average cost and this is your marginal cost. So equilibrium will be where MRMC will cut. So this is your MRMC is cutting here, okay, no problem, and here you have P. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, what is the here profit, AC is equals to here average cost is equals to, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है at equilibrium, at average cost is equals to, यहाँ पे क्या हो रहा है marginal cost and which is also equals to marginal cost. तो here you don't have extra profit. Same diagram we will draw in the left side. अभी मैं आपको बताता हूँ. Just a minute. Yeah. Now you consider this diagram. Same MRMC वही है. Here you have average cost like this. This is your average cost, and here you have marginal cost. Clear? Let's keep it blank. So simple rule, MRMC where it will cut. This is your MR equals to AR equals to P. In the perfect competition we have seen. तो AR और MR यहाँ पे कहाँ पे कट हो रहा है? Anyone at this point? यहाँ पे कट हो रहा है, राइट? सो दिस इज योर क्वांटिटी, और प्राइस कहाँ पे डिफाइन होगा? सॉरी, प्रॉफिट कहाँ पे डिफाइन होगा? बट योर कॉस्ट इज दिस ओनली एट दिस क्वांटिटी. योर कॉस्ट इज दिस ओनली, एंड दिस शेडेड रीजन इज एनीवन? Supernormal profit. Exactly. Do we have such kind of diagram in the B? This is your A diagram and this is your B diagram. Do we have same diagram in right side? No. Here at this point you see that here price is equals to average cost, isn't that? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्राइस ही इतना है, एवरेज कॉस्ट भी इतना है, बट हियर एवरेज कॉस्ट इज लेसर देन प्राइस. So always remember, whenever average cost is lesser than price, we will have supernormal profit. But whenever price is equals to average cost, we will have anyone? What? Loss? Normal profit. Normal profit. In many books or many times it is also known as economic profit. ठीक है. अब यह प्रॉफिट क्या होगा? यू विल बी सेइंग कि सर यहाँ तो प्राइस जितना लगा वहाँ कॉस्ट भी लग गया, सो देयर इज नो प्रॉफिट, नो गेन, नो लॉस. नो माय डियर फ्रेंड, जस्ट वी डिस्कस्ड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट वी हैड. वी डिड नॉट स्पेंड ऑन द इम्प्लिसिट कॉस्ट, दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एंगल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने बचा लिया, एंड द काइंड ऑफ प्रॉफिट वी विल हैव. इन एग्जाम दे कुड आस्क, simply they will give big numerical, and at the end they will write, given that the opportunity cost of that employee or the implicit cost is 20,000 rupees or 25,000 rupees, find the amount of normal profit. So simple, you know that normal profit is nothing but the implicit cost involved in that production process. So simply you can say, no need to solve all the big numericals, 4-5 लाइन का numerical देगा, और at the end as a hint they will दे देंगे. तो simply you should say कि normal profit is nothing, जो भी implicit cost लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ARP बराबर AC कर दिया. It's fine, there is no supernormal profit for this diagram, no supernormal profit, because price is equals to average cost, or if we will see TR equals to TC, तो TR is equals to TC. बट भाई यहाँ पर यह भी देखिए ना कि आपने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को त्यागा. यू डिड नॉट कंसीडर योर सैलरी एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट. एनी डाउट? दिल खुश? चलिए, क्लियर? हाँ, इतना समझने में मैं बता रहा हूँ. लेट मी जस्ट, आई विल गिविंग यू द ब्रीफ. लास्ट मंथ in HCU
there was a PhD. After PhD, what happened? You become the assistant professor and all. So before becoming assistant professor, sometimes 6 months or 1 year, maybe you have to work as a guest faculty sometimes, or ad hoc or something. Direct recruitment नहीं होते हैं, because sometimes you also need experience. तो गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट चल रहा था. देयर 2 पोस्ट वर देयर इन आवर डिपार्टमेंट इन HCU. एक माइक्रो के लिए था और एक था शायद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए. तो इन इंटरव्यू सम ऑफ माई सीनियर्स अपियर इन द इंटरव्यू. तो आई आस्क्ड यू कि सर और भैया व्हाट डिड दे आस्क इन द इंटरव्यू. सो दे आस्क्ड जस्ट 3 क्वेश्चंस. आउट ऑफ दैट फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ शट डाउन कंडीशन. शट डाउन वाला एंगल कहाँ पर होगा. So you see that to become assistant professor you need basic things, because these are basic things, and I know in many books these things are not clearly mentioned. So you should know these hacks कि आपका अभी जो पढ़ा हुआ है whatever you guys are studying ना, this will help in coming days. Doesn't matter which exam you are preparing in future, these basic things will work. So ये basic चीज़ पे आपको ध्यान रखना है. तो हमने सारे कॉस्ट को देख लिया. अब हम 6 डायग्राम को देखेंगे. चलिए डायग्राम पार्ट 1 प्लीज इफ पॉसिबल ड्रॉ विथ मी. पार्ट 1 हम डायग्राम करेंगे, दैट विल बी TR एंड TC अप्रोच. क्विक कर लेंगे हम लोग, काफ़ी फास्ट डायग्राम करेंगे. चलिए 3 पार्ट में मैं बांट दे रहा हूँ. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. ठीक है. फर्स्ट पार्ट का हमारा डायग्राम आएगा एकदम क्लियर वाली बात. इसको कलर में बदल दे रहा हूँ. या फर्स्ट डायग्राम, दिस इज TR TC अप्रोच. सिंपल, वी हैव शोन दिस डायग्राम कि हमारा ऐसा डायग्राम क्यों आएगा. सो दिस इज योर TR. ये सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ भी वही रहेगा. दिस इज ऑल्सो योर TR. प्लीज गो बैक टू लास्ट लेक्चर. ऑल दिस वी हैव सीन कि यहाँ TR कैसे आया. एंड दिस इज अगेन योर TR. डायग्राम क्लियर. अब हमें क्या करना है, TC ड्रॉ करना है. वी हैव टू ड्रॉ द TC. TC का सिंपल सा रूल है. कैन यू रिमेंबर S वाला, दिस वाला S सेफ. सो दिस इज आवर TC. यहाँ पे देखिए क्या है, TR TC अप्रोच में द स्लोप ऑफ TR बेसिक सिंपल. दिस इज द स्लोप ऑफ TR. द पैरेलल स्लोप कहाँ पे जाएगा, चलिए ऑन C एक्सिस. तो यहाँ पे पैरेलल नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल नहीं हो रहा है. कहाँ पे पैरेलल हो रहा है, यू विल फाइंड द पैरेलल स्लोप. अरे यार सॉरी, यू विल फाइंड द पैरेलल स्लोप हियर. क्या बोले, यहाँ से. हाँ यहाँ से है ना, दिस वन. ओके ओके, गॉट योर पॉइंट. थैंक यू फॉर दैट. आई थॉट कि जस्ट बेसिक आई एम डूइंग. ओरिजिन से पास नहीं है क्योंकि नीचे आपका फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ना. यू आर राइट. चलिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूँ. दिस इज योर TR और यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, अब सही है ना. चलो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल सबके लिए. सो दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट. उसके ऊपर जो जाएगा टोटल कॉस्ट, नीचे से आएगा वेरिएबल कॉस्ट. एनीवे, तो TC TR ले रहे हैं. सो द स्लोप ऑफ TR शुड बी पैरेलल टू द स्लोप ऑफ TC. इसके पैरेलल यहाँ पे आएगा. दैट पॉइंट विल गिव द मैक्सिमम पॉइंट. ऑलवेज रिमेंबर. सो दिस पॉइंट और यहाँ से पैरेलल नीचे कर देंगे एंड दिस इज योर Q max. सो दिस क्वांटिटी मैक्स विल गिव द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट यह हो जाएगा, दिस मच अमाउंट. सो दिस शेडेड लाइन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर TR और TC के बीच जो है स्लोप जहाँ पे सेम रहेगा, द स्लोप ऑफ TR इज दैट इज स्ट्रेट लाइन, एंड द स्लोप ऑफ TC एंड द स्लोप ऑफ TR जहाँ पे इक्वल होगा, दैट पॉइंट ऑफ Q विल गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Q विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. क्लियर. तो यह हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. चलिए इसको भी हम ब्लू कलर से लेते हैं. नेक्स्ट हम चलिए लॉस को देखते हैं. पहले प्रॉफिट हो गया, लॉस को देखते हैं. तो लॉस में क्या होगा, एनीवन हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द लॉस, प्लीज देखिए. हाँ, TR नीचे रहेगा, TC ऊपर जाएगा. तो यहां पर हमने वही S सेव करना है एंड दिस इज योर TC. अगेन वही TR और TC के स्लोप जहां मैच करेंगे. चलिए ये यहां हो गया, ये यहां हो गया. ठीक है. तो हियर यू सी दैट TC इज ग्रेटर देन TR एट द पॉइंट ऑफ इक्वल स्लोप. इक्वल स्लोप है TR और TC, और यहाँ पे आप आउटपुट हो जाएगा. सो दिस इज योर Q max. यहाँ पे आप मैक्सिमाइज करोगे आउटपुट. सो दिस इज इरेशनल डिसीजन. This is irrational decision because here you are suffering loss because TC is greater than TR. Cost आपका ज़्यादा है revenue से ना. Here क्या हो रहा है, your revenue is greater than TC at the point of maximum Q max. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए TR is greater than TC. यहाँ पे TC is greater than TR. Okay.
नाउ लेट्स कम टू द नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना है, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पे हल्का सा इसको टेंजेंट होगी। दिस इज योर टी सी। अगेन विल सी कि वेयर टी आर एंड टी सी इज द कर्व इज कॉमन एट द नेक्स्ट मूव। तो एक तो यहाँ तो होगा नहीं, वी विल सी द सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे देखिए कॉमन है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा क्यू मैक्स, आउटपुट इज मैक्सिमाइजिंग। सो एट दिस पॉइंट टी आर इज इक्वल्स टू टी सी, वी ऑल्सो कॉल इट नॉर्मल प्रॉफिट, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नॉन एज जीरो प्रॉफिट। देखिए एक चीज़ें आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, कहीं भी बुक में एनी टाइम इफ इट इज रिटन जीरो प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, यह दोनों सेम ही होता है। समटाइम्स सम बुक राइट्स इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑल्सो, सो बोथ आर सेम। क्लियर? TRTC डायग्राम डन, पार्ट ए। नाउ नेक्स्ट 3 डायग्राम, लेट्स कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी, ठीक है। सो हियर वी विल हैव MRMC अप्रोच। MRMC अप्रोच कैसे होता है, दैट वी हैव सीन इक्विलिब्रियम वाला, बट वी हैव नॉट सीन द डायग्राम, एंड इन दैट डायग्राम वी विल ऑल्सो सी शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है, ओके। सो बेसिक डायग्राम वही है जैसा आप क्लियर करते थे, इसको रेड कलर से करेंगे। फर्स्ट डायग्राम पहले हम करेंगे, इसमें चलो गेन को दिखा देते हैं, दैट इज द प्रॉफिट। सो दैट इज द सेम MR बराबर प्राइस, ठीक है, जो कि एवरेज कॉस्ट कहीं बराबर होता है, दैट वी विल सी। तो चलिए ये हमारा है एवरेज कॉस्ट, क्या हो गया, अच्छा एवरेज कॉस्ट ऊपर होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर होता है, एनीवन? एवरेज कॉस्ट ऊपर होता है। AC एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर होगा, क्योंकि उसमें टोटल कॉस्ट या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टेल मी द डिफरेंस, व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस टू? देयर इज ए गैप ना, यू सी दिस गैप इज देयर, व्हाट इज द गैप? द गैप इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड, दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि गैप क्यों है, करेक्ट। और यहाँ नीचे से ऑलवेज रिमेंबर द मिनिमम पॉइंट से कट करके जाएगी, तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट था उसको दोनों को कट करेगी, यह हो गया आपका MC, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब सिंपल है, आराम से यू सी दैट कि MC जो है MR इक्वल्स टू MC होना चाहिए और नीचे से कट करना चाहिए। तो ठीक है भाई लो, MR बराबर MC हो गई, यहाँ पर नीचे से कट कर रही है, यहाँ नीचे से कट कर रही है। सो दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइस इज गिवन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, द आउटपुट मैक्सिमाइजेशन पार्ट इज द फ्रॉम हियर, जस्ट 1 मिनट, द आउटपुट मैक्सिमाइजेशन पार्ट इज Q मैक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आउटपुट मैक्सिमाइजेशन हो गया, इसको हम थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। और प्राइस आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस गिवन है, कॉस्ट कहाँ पे होगा, एनीवन? एवरेज कॉस्ट हम लेंगे, तो दिस पॉइंट पे देखिए कॉस्ट हो रहा है ना, जहाँ पर टच करेगी इसको, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। दिस पॉइंट, so this is your profit wala part, clear? So this part is your profit part. Please learn how to draw the diagram. First you have to find the point of Q. जैसे ही Q point आपको मिला, आराम से डायग्राम कर दीजिए, and you see that which point of TVC is cutting. यह थोड़ा लाइन ऊपर जाता, और that is my bad, थोड़ा सा ऊपर जाता, and the shaded portion is your anyone? एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल। मैंने क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट में नथिंग, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा आपका, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस। नेक्स्ट हम करेंगे, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, एबनॉर्मल नहीं होता है, उस तरह से मत बोलिए, यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। घरेलू भाषा में हम एबनॉर्मल बोल देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल थोड़ा नेगेटिव वर्ड है ना। हाँ, तो पार्ट बी का डायग्राम पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 डायग्राम देखेंगे। इसमें हम चलिए पहले देखते हैं, चलिए दिलखुश जी के बात को लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इसमें हम देखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेम डायग्राम, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे आ गया आपका AR इज इक्वल्स टू MR है, यह हमने किया था, प्लीज रिमेंबर, P इंटू क्यू, 1Q था, प्राइस आपका 10 था, यहाँ पे टोटल TR कितना आ रहा था, 10 रुपीज़। फिर हमने प्राइस को 10 रखा था, प्राइस इज गिवन, प्राइस मेकर फर्म इज, क्वांटिटी 2 हुआ था, 20 आ रहा था। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट आपने जो
टोटल रेवेन्यू 2 से अर्न किया माइनस टोटल रेवेन्यू 1 से अर्न किया। तो टोटल रेवेन्यू 2 से हमने किया था 20, 1 से अर्न किया था 10, 20 माइनस 10 दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, दैट वाज आल्सो 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 था, प्राइस 10 था, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। तो टोटल रेवेन्यू सपोज दैट 20 है यहाँ, तो 20 अपॉन क्यू कितना है 2 है, तो 3। इज इट प्रूफ? सो इफ समबडी आस्क यू टू शो मी कि कितना कैसे होता है, तो दैट इज द शो। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू AR इन परफेक्ट कंपटीशन। दैट्स वाई इट इज द स्लो डायग्राम इज लाइक दिस। फिर वही करेंगे, हमारा एवरेज कॉस्ट नॉर्मल रहेगा। एवरेज कॉस्ट यहाँ पर लॉस में हमें दिखाना है, हमें याद रखना है, राइट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट में दिखाना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट हमारा यहाँ से जाएगा, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इसको मिनिमम से टच करेगी, सो दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके जस्ट नीचे से जाएगी, राइट, दिस इज आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो मिनिमम यहाँ पे की है, सॉरी द कंडीशन वी विल चेक। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कह रहा है आपका, MR इज इक्वल्स टू MC एंड इट मस्ट कट फ्रॉम द बिलो। तो कि MR MC यहाँ पे है, कट फ्रॉम बिलो है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया Q max, क्लियर। तो Q max आउटपुट हो गया, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, सिंपल। अब क्या मैंने बताया था कि हमें वहाँ पे मैच करना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, यह तो प्राइस हो गया। यू प्लीज गो बैक टू द डायग्राम, यू मस्ट हैव टू थिंग्स हियर एट दिस पॉइंट, प्राइस एंड कॉस्ट, वाई एक्सिस प्लीज, और एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी। एनी डाउट? तो प्राइस इतना है एंड दिस इज योर कॉस्ट, अगेन वी विल सी। तो प्राइस हमारा इतना हो गया, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट का हम कौन सा पार्ट लेते हैं, विच पार्ट वी टेक ऑलवेज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी हमारा इतना है, अगेन वी विल सी द डायग्राम। सो एट दिस पॉइंट यू सी दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू AR. So here what we will have, anyone? So this situation is known as normal profit. Very good. अब देखिए, अब आएगा हमारा लॉस, नेक्स्ट डायग्राम। लॉस तो काफ़ी इजी है, लॉस वाला डायग्राम काफ़ी इजी है। लॉस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी प्राइस से, सिंपल सेम। सटाक सटाक जल्दी डायग्राम खींचना आप लोग सीख लें। इकोनॉमिक्स में डायग्राम सीखने का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इस सेट से। एवरेज कॉस्ट हमारा चलो ऊपर चला गया, यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट चला गया, एंड लेट्स चेंज द कलर। सिंपल रूल, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू। MR इक्वल्स टू MC, प्राइस है यह, तो MR MC कहाँ पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट। जस्ट क्लोज योर आई एंड ड्रॉ द पॉइंट। यहाँ पे हमारा Q max हो गया, बट टू थिंग्स वी नीड, प्राइस एज वेल एज कॉस्ट। कॉस्ट वाला एंगल मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कर रहा है, यू सी दैट। क्वांटिटी कहाँ कट हो रहा है हमारा, क्वांटिटी से इसको हम चेक करेंगे। तो यू पैरेलली ड्रॉ दिस क्वांटिटी, यहाँ पे कट हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर कॉस्ट, सी वाला लाइन। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड प्राइस है, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी। एंड यू प्लीज join this point and just shadow area. So this shadow area is, anyone? Loss. Exactly. अच्छा, अब आप हमें यह बताइए, just to be very frank, do you think during loss the company will be still producing or not? Yes or no? Yes. Why? अच्छा, if somebody say no, that is the logic, because loss हो रहा है तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, because there is a violation of profit maximization condition. But some answer I got yes. Why yes, or in which case yes? Anyone? जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी तब तक वो करेगा। अच्छा चलो, वेरिएबल कॉस्ट हम दो तरह से खींचते हैं। फर्स्ट ब्लैक, सपोज दैट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक दिस। एक यह है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1, एक और हम लेते हैं चलो ब्लू कलर से, and suppose that this is your average variable cost. Average variable cost. In which situation firm will shut down, or in which situation firm will not shut down? In case of ABC1, firm will shut down. Exactly. Now the important, yeah, we'll see the supply curve also, don't worry. Exactly, she told very correct. When there is a average variable cost 1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि even we are unable to recover average variable cost. But when firm will be having average variable cost, अगर average variable cost is
lesser than average revenue, firm will continue the production. But if average variable cost is greater than average revenue, then in this case firm will shut down, and the point where beyond that firm cannot produce, that point known as shut down point. इसको मैं एक और छोटा डायग्राम बनाऊंगा. Let's take it here only. You tell me here what is the shut down point here. चलो दो तीन पॉइंट मैं लिख देता हूँ, पॉइंट E, पॉइंट A, पॉइंट B, या एनीवन? पॉइंट ए नहीं भाई, पॉइंट ए तो एवरेज कॉस्ट है. सपोज दैट, ये पॉइंट ई, यस, हियर पॉइंट ई इज शट डाउन पॉइंट. Even your price, suppose that by any reason even your price if reduces till here ना, till here it will keep producing, but यहाँ तक भी producing, इसके नीचे थोड़ा भी प्राइस जाएगा ना, so they will have loss, क्योंकि they will be unable to recover their even variable cost. तो simple, the point where shut down point, इसमें दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइस. इफ दैट पॉइंट वेयर प्राइस फॉल्स, P falls below average variable cost, at that point we stop producing, and that point known is shut down point. But even despite loss we will keep producing if your price is greater than average variable cost. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, if question is asked like assertion and reasoning, so if there is a loss situation, will firm produce or not? First thing, तो if option is there कि incomplete information, then you should go with incomplete information. But if it is written कि firm is suffering loss and average variable cost is greater than price, then in this situation already we have to shut down the firm. Any doubt to understand it? Shall we move ahead? Shall we see the how to find the supply curve for the competitive firm? चलिए, तो टोटल डायग्राम हमने देख लिया, 3 + 3 that was 6 diagram done. Now let's change the topic and please write the equilibrium condition for the short. अच्छा हाँ, एक सेकंड मैं बताना भूल गया, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम. शॉर्ट टर्म तो अभी हमने जो किया वही था, दैट इज दिस वन, सेम वन, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, व्हाटसोएवर, ठीक है, दिस वन सेम वन, एंड दिस इज योर प्रॉफिट. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MR = MC, दैट एवरीबडी नोज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जितने भी SMC होंगे, दिस इज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हमारा इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर क्या होगा, दिस इज प्रॉफिट कंडीशन. बट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए सारा पॉइंट का मिलना जरूरी होगा एट दिस पॉइंट. सी दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, MR है, AR है, all point will meet. But in long term, always remember, very very important point, in short term there can be supernormal profit, there can be normal profit, anything is possible. But what about in long term, anyone? Sir, only normal profit will occur. Exactly, only normal profit. In long term there is no supernormal profit, always remember. तो इसका डायग्राम वही बनेगा, सिंपल वाला जो था, this one, और your average cost will like this. This is your average cost, this is your this one, this. यहाँ पे long term की बात कर रहे हैं. In long term what happens? Fixed cost disappear. Always remember, long term में क्या रहेगा, all factors are variable, so we will have only variable cost. तो variable cost क्या हो जाएगा, average variable cost is equals to, is it true? Just tell me yes or no. Is average variable cost equals to average cost in long term? Guys please take it seriously. See this once again, short term, long term, ठीक है. In short term we have total cost is equals to, या total average cost, TAC, total average cost is equals to average variable cost plus average fixed cost. But in long term there is nothing called fixed cost, all are variable cost, all are variable cost. So in this case we have total cost is equals to fixed cost 0 plus total variable cost. अब इसको हम Q से डिवाइड करेंगे,
डिवाइडेड बाय क्यू, देन ओनली वी विल गेट एवरेज ना. तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज टोटल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस क्यू, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? तो ये है बेसिक डिफरेंस. तो इन दिस सिचुएशन एवरेज कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा. दिस इज योर दिस मार्जिनल कॉस्ट, एंड यहीं पर हमारा एसएमसी भी आएगा, एलएमसी भी आएगा. ठीक है, एसएमसी मीन्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस. यहाँ पे प्राइस है हमारा. क्लियर? सो एंड इन दिस केस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन short run and long run. Please read the book, any book for microeconomics. 3 books I told. It's all up to you. Either Kotsianis, PDF is already sent in the group, Pindyck and Rubenfield, or HL Hoja. Any book. There are some minor mistakes in HL Hoja. That is very minor, very silly mistakes that everybody can understand. But if you find it is little lengthy and all, I would say go with the Kotsianis or the Pindyck and Rubenfield book. Both are very fantastic book. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. टॉपिक यहां पे लिख लीजिए, सप्लाई कर्व फॉर कंपिटिटिव फर्म. सप्लाई कर्व. एनीबडी नो व्हाट इज सप्लाई कर्व फॉर कंपिटिटिव फर्म? सप्लाई कर्व फॉर परफेक्ट कंपटीशन और कंपिटिटिव, बोथ आर सेम. कॉम्पिटिटिव फर्म. एनीवन प्लीज, हाउ डू यू फाइंड सप्लाई कर्व? बताइए. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, somebody is trying to say, you can just say, no need to, I mean just raise your thing directly, you can say. Yeah, that is true. So in one line you can say those portion of line, or simple, just 1 minute, those portion of line or those part of MC. MC is must, marginal cost. MC is just above what? Average variable cost. Always remember, not average cost. इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. देखिए, फर्स्ट यू शुड नो मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व. इंडस्ट्री डिमांड कर्व कैसा होता है? दैट इज डिमांड सप्लाई. इन डिमांड सप्लाई वी हैव स्टडीड, एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, दैट लेट्स से S1. यहाँ पे क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम हो गया. क्लियर? दैट इज योर क्वांटिटी एंड हियर यू हैव प्राइस. इफ सप्लाई इंक्रीजेज, सप्लाई विल शिफ्ट राइट वर्ड S2, S3. ऑब्वियसली प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस विल डिक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजेज, क्वांटिटी इंक्रीजेज. क्लियर? या बेसिक है एकदम क्लियर. क्वांटिटी 1, 2, क्वांटिटी 3, हियर प्राइस इज रिड्यूसिंग. तो यह हो गया फर्म इंडस्ट्री का सप्लाई और मार्केट सप्लाई. सप्लाई कर्व हैज नथिंग दैट मच इशू, दैट इज एज ए इंडस्ट्री. बट व्हाट अबाउट एज ए फर्म? फर्म का सप्लाई कर्व यह नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर, फर्म का सप्लाई कर्व देखिए क्या होता है. सपोज दैट एट दिस प्राइस यू हैव P1. तो यहाँ पे कैसा आएगा डायग्राम? सी दिस. ओके माय डियर फ्रेंड, चलो दिस इज योर, थोड़ा इसको छोटा खींचते हैं, 2 डायग्राम बनेगा. होप आई एम ऑडिबल गाइज, बी विथ मी. या ग्रेट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमको? आराम से इसके पैरेलल, सपोज दैट P1 अभी हम ले रहे हैं, यह प्राइस है, तो हमारा यहाँ पे पैरेलल कर्व बनेगा, दैट इज MR. सो हियर MR1 इज इक्वल्स टू P1. क्या हुआ? देयर इज अ राइज इन प्राइस. वाई राइज इन प्राइस? हियर सप्लाई वाला पोर्सन. इफ सप्लाई डिक्रीजेज, प्राइस राइजेज. इफ सप्लाई इंक्रीजेज, प्राइस चेंजेज. सो इफ प्राइस चेंजेज, then definitely your MR will shift. Always remember, if supply changes, supply of industries or supply of market changes, your MR will shift. MR2 यहाँ पे आ गया जो कि प्राइस 2 हो गया. Similarly for this क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा MR3 आ जाएगा. MR3 for this price will be 3. And there is a given that कि हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट है वह गिवन है. तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा एक ही रहेगा, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट. यह हो गया आपका सपोज दैट मार्जिनल कॉस्ट. और आपका जो एवरेज कॉस्ट था फॉर द फर्म, दिस वन मार्जिनल कॉस्ट. सपोज दैट योर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक दिस. दिस इज सपोज दैट योर एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज सपोज दैट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? नाउ यू हैव टू बी लिटिल ट्रिकी. जस्ट आई रोट कि सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, इसको ब्लैक से मैं कर देता हूँ, दिस वन ब्लैक नहीं हुआ लग रहा है. हाँ, सो दिस वन सप्लाई कर्व ऑफ हमें फर्म निकालना है. यह तो हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन की सर आपने एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दिया. डेफिनेशन लिखा हुआ है सप्लाई कर्व फॉर कंपटीटिव कर्व इज पोर्शन, यहाँ पे लिखिए पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. क्योंकि आफ्टर सप्लाइंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओनली वी कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन एंड वी कैन चार्ज देम प्राइस एंड अर्न द रेवेन्यू ना.
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे है, इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, दिस ओके। सपोज दैट यहाँ पे कुछ आया और यह MC का पोर्शन है, एबव दैट दिस इज वन MC, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस वन सपोज दैट प्राइस 1P यहाँ से, एंड दिस एबव पैरेलल, दिस इज योर MC एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। एनी डाउट, क्लियर। तो सप्लाई कर्व नीचे कैसा आ जाएगा, एक मैं बड़ा डायग्राम खींच देता हूँ। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व, क्लियर। अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे आपका प्राइस है P, कोई क्वांटिटी यहाँ से खरीदना हो, सपोज दैट Q1, Q2 पे प्राइस 2, Q3 पे प्राइस 3, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्लियर। डायग्राम इज वेरी क्लियर। यहाँ पे यह था, अगर आपको अधिक प्रोडक्शन करना है, सो इफ देर इज अ राइज इन मार्जिनल कॉस्ट, मोर प्राइस एंड सप्लाई विल बी इंक्रीजिंग। सो दिस प्रूव दैट कि इफ प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस, बट इन डिमांड इट वाज जस्ट रिवर्स। अब एक छोटा न्यूमेरिकल हम करते हैं, एकदम बेसिक वाला, फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स। आई होप कि एवरीबडी कैन आंसर। टाइम इज गिवन 30 सेकेंड, वेरी क्विक। फिर अभी हम आप देखेंगे इंडस्ट्री का 3 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप कि वी हैव एनफ टाइम। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। तो सप्लाई कर्व बराबर क्या हो गया, P इज इक्वल टू MC। यहाँ पे देखिए एबव प्राइस इज इक्वल टू MC ना, दिस वन, ये MC कर्व है, दिस इज योर MC कर्व। एबव द वेरिएबल कॉस्ट कर्व गिव्स द दैट वन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टोटल कॉस्ट इज गिवन, वी हैव टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सपोज दैट Q स्क्वायर प्लस 1, this is total cost function given. Now you have to find supply curve of firm. Anyone, can someone think? Just put your insights if somebody knows. बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट अप्लाई लॉजिक। मैंने लॉजिक के लिए क्या बताया था, हाँ मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है। हाँ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन बताइए। वेरी गुड, यस, हाँ दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 चीज़ याद रखना है हमें। पहले चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, क्या पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी दिस, हमें चाहिए क्या, एबव वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट वी नीड वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वट एवर यू से, TVC अपॉन Q, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट, क्लियर। तो चलिए भाई पहले हम VC निकालते हैं। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन कैन समबडी टेल व्हाट इज VC? आई टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, एनीवन? Q स्क्वायर, एग्जैक्टली करेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जिसमें Q लगा रहेगा ऑल वुड बी द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द क्वांटिटी। और बाकी जो है जिसमें Q नहीं लगा रहेगा, इफ Q इज नॉट अटैच टू दैट पर्टिकुलर नंबर, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट, तो Q स्क्वायर इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड 1 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ओके वेरी गुड, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए पहले आप एग्जैक्टली डेफिनेशन पकड़ना है, मार्जिनल कॉस्ट एरिया ऑफ या पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एबव ABC, तो ठीक है भाई, चलो हम यहाँ से ABC निकालेंगे। तो हमारा ABC क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू VC अपॉन Q, तो Q स्क्वायर अपॉन Q, राइट, दैट इज Q। यहाँ से हमारा आ गया ABC Q। अब मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से निकालेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, पहले मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2Q निकलेगा, 2Q प्लस 0 दैट इज दिस ओनली। नो थिंग्स आर वेरी इजी। तो सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, सप्लाई कर्व इज इक्वल टू, आई टोल्ड इन द राइट, एक मिनट, सप्लाई कर्व इज इक्वल टू P इक्वल टू MC, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू MC रहे। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर दिस इज योर MC, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर क्या है, P इक्वल टू MC, यहीं से तो निकलेगा, यहाँ पे प्राइस है, तो जहाँ पे P इक्वल टू हमारा MC आ जाएगा। ओके, तो P इक्वल टू MC आ जाएगा। MC कितना है हमारा, 2Q, तो P इज इक्वल टू 2Q, दिस इज आवर सप्लाई कर्व। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके एबव। सो यू कैन सिंपली राइट द लाइन 2Q कैसे होगा, जैसे देखिए सपोज दैट आपका प्राइस 1 रहेगा, तो क्वांटिटी कितना रहेगा, क्वांटिटी सपोज दैट 2 रहेगा, दिस इज 1, दिस इज 2। प्राइस आपका 2 रहेगा, तो क्वांटिटी क्या रहेगा, 4 रहेगा। जस्ट ज्वाइन द लाइन, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एंड यू जस्ट ज्वाइन दैट। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व। एनी डाउट?
So the equation would be like this. So P is equals to 2Q is your supply curve. That's why normally if you simply differentiate, marginal cost ही आपका supply curve देता है, where marginal cost is equals to P. Here we did the same. Marginal cost हमारा क्या आया 2Q, price P, that is the supply curve. Clear? Please. सर फिर एबीसी क्यों निकाले हम लोग? Q के लिए ना, क्या बोले? हाँ, नो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. एवब निकालने की जरूरत नहीं थी. नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं. आई जस्ट कंक्लूडेड कि यहाँ से हमें अगर पूछा जाए, इफ क्वेश्चन इज जस्ट गिवन दैट कि यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता है, मैं बता रहा हूँ उसका लॉजिक. यहाँ से इफ दिस इक्वेशन, इफ दे आस्क फाइंड एवीसी, फाइंड टीएफसी, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, तो एवीसी आप कैसे निकालोगे? एवीसी आप इस तरह से निकालोगे ना, दिस वन क्यू. एंड इन इक्वेशन हाउ दे विल गिव स्टेटमेंट नंबर 1, from the given equation we will have AVCQ, or sometimes simply they can ask, if you are asking कि सर AVC क्यों निकाले, in statement they will write कि y is equals to q. So do you think it will be correct answer? Please hold it here. This one, two condition you must meet. Average variable cost के ऊपर होना चाहिए. ऊपर कैसे हमें पता चलेगा? That point you need ना, something ऊपर नीचे कैसे पता चलेगा? Suppose that this is your line, तो इसके ऊपर जाना है या इसके नीचे जाना है, हमें तो एक पॉइंट चाहिए, देन ओनली वी कैन चेक ना. तो दैट पॉइंट इज गिवन बाय प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. एवीसी इज जस्ट टू जस्टिफाई दैट कि वी हैव सम पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज सप्लाई हैज टू बी पॉजिटिव एंड दैट मस्ट बी एबव द एवीसी लाइन, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू एमसी. क्लियर? तो यहाँ से पी इक्वल्स टू एमसी आया और इसके एबव जो लाइन जाएगा दैट इज सप्लाई कर्व लाइन. अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज वेरी स्मॉल टॉपिक, कि यह तो हो गई हमारी फर्म की बात. फर्म का इक्विलिब्रियम देख लिया, फर्म का शॉर्ट टर्म देख लिया, फर्म का लॉन्ग टर्म देख लिया. इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, आप लोग यह बताइए इंडस्ट्री जो होता है, हैव यू सीन हियर वी विल हैव 3 काइंड्स ऑफ कर्व. 3 काइंड्स ऑफ कर्व का मतलब यह हुआ कि सप्लाई कर्व जो है यहाँ पर लॉन्ग रन, इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करेंगे. लॉन्ग रन जो है सप्लाई कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होगा. डिड यू नो दिस? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा और हॉरिजॉन्टल होगा. हॉरिजॉन्टल होगा. अच्छा हाँ, एक चीज और, परफेक्ट कंपटीशन को मैंने शुरू में ही बता दिया था. दीज बेसिक फीचर्स, व्हेन आई आस्क यू टेल मी द बेसिक फीचर, दिस वन. यहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी कितना है यहाँ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस कर्व. प्लीज गो बैक टू इलास्टिसिटी चैप्टर 1 और इन्फिनिटी. एग्जैक्टली इन्फिनिटी याद रखना है, ठीक है. इन्फिनिटी का, हाँ, इन्फिनिटी का मतलब यह हुआ कि सिंगल बायर और सिंगल सेलर कैन नॉट अफेक्ट, दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. और इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा अगर प्राइस चेंज हुआ, सपोज दैट इफ योर प्राइस इज 10 रुपीज फॉर ए पेन एंड यू हैव इंक्रीज योर प्राइस 10.1, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? प्राइस जैसे ही 1 होगा, योर डिमांड विल बी फॉर दैट प्रोडक्ट 0. दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी इलास्टिसिटी. So that's why you have to maintain the constant price, competitive price. हाँ, अब हम इंडस्ट्री की डायग्राम की बात करेंगे. It will take hardly 5 to 10 minutes. No need to worry. Downward sloping, upward sloping, horizontal sloping. First I will show कि horizontal कैसा होता है. First one, write the topic. Topic you should write long run industry condition. इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे? इक्विलिब्रियम हमने देख लिया फर्म का. अब हम देखेंगे इंडस्ट्री में लॉन्ग रन जो होता है कैसे होता है. 3 काइंड्स होते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो आपका सप्लाई कर्व इस तरह से होगा, और एक होता है आपका सप्लाई कर्व जो होगा अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, और एक होता है सप्लाई कर्व, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल. नंबर 1, एज यूजुअल ये देखिए आपका सप्लाई डिमांड से ही निकले. अरे सॉरी यार, सॉरी गाइस, या दिस वन, ठीक है. यहाँ पे क्या करना है हमें? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे निकलेगा? तो यह हमें आएगा शॉर्ट टर्म से. तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर डिमांड D1, दिस इज योर सप्लाई S1. वेरी गुड. नाउ व्हाट हैपेंड? सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन सप्लाई चेंज हुआ एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ डिमांड इज चेंज. तो डेल्टा S एंड डेल्टा D में सेम अमाउंट ऑफ चेंज हुआ. ओके, देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई, देयर इज अ shift in demand. Sorry. Supply demand, हाँ, better to do like this. और आपका सिमिलर जो है डिमांड भी हो गया.
again similar shift in supply, same amount of supply, same amount of demand is there. Clear? थोड़ा ज़्यादा डिमांड हो गया लग रहा है, बेटर टू इरेज इट. चलिए अब नहीं होगा गलती. डिमांड आपका तो S1 यहाँ पे आ रहा है, S2 यहाँ पे आ रहा है, S3 क्या हो गया, थोड़ा नीचे जा रहा है. इसका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है गाइज, थोड़ा सा आप लोग इसको केयर करेंगे. S1 एंड S2 यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चेंज इन सप्लाई शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड. इन सच सिचुएशन आपका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा. लॉन्ग टर्म सप्लाई कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ शॉर्ट टर्म. तो एक समेशन का इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है. नेक्स्ट डिमांड 2 सप्लाई 2 यहाँ पे बन रहा है, और डिमांड 3 और सप्लाई 3 जो आपका बनना चाहिए वह यहाँ पे समथिंग बनना चाहिए. तो सप्लाई को थोड़ा हम और डिमांड को थोड़ा हम उधर ले जाएंगे, दिस डिमांड वाला पोर्शन, तब हमारा सही डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, या 2 डायग्राम से अभी हम काम चलाते हैं. चलिए, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, नो प्रॉब्लम. ठीक है दिलखुश, आर यू विथ अस? तो दिस पॉइंट, हाँ सप्लाई को जरा ऊपर कर दीजिए सर आप. हाँ गॉट इट. दिस वाला ना, ये वाला सप्लाई थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वही. हाँ, बहुत दिन से डायग्राम प्रैक्टिस नहीं होगा. द सेम मिस्टेक यू गैज कैन हैव. आई एम ऑल्सो ए लर्नर, डोंट कंसिडर मी एज ए फैकल्टी. आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सो आई एम ए स्टूडेंट ओनली. गलती नो ऑब्वियस है. हाँ, सप्लाई को थोड़ा ऊपर कर दिया जाए. यू आर राइट. अब लग रहा है हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर S2. तो यहाँ पे देखिए द सेम अमाउंट एंड यू जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट, स्ट्रेट लाइन दे विल गिव. सो दिस लाइन यू विल गेट स्ट्रेट. यहाँ पर वही है, अब सप्लाई थोड़ा बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाए, डिमांड भी सेम से बढ़ेगा आपका. चलो सेम अमाउंट ऑफ से डिमांड बढ़ा, सेम पॉइंट. सो ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट, दिस इज योर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस इज नॉन एज कांस्टेंट कॉस्ट industry. Please remember what is constant cost industry. When there is a equal change in supply and demand, then it will gives the constant cost industry. And in this case क्या होगा, वही आपका इक्विलिब्रियम जो बनेगा फर्म का. यहाँ पर AR MR रहेगा, यहाँ पे MC रहेगा, यहाँ पे AC रहेगा. ठीक है, यहाँ MC हो गया, यहाँ पे AC हो गया, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया. क्लियर? यह हो गया फर्स्ट केस व्हेन यू विल हैव हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व. प्लीज राइट इट डाउन. नीचे यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे प्राइस रहेगा, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. क्लियर? अब आते हैं 2 नंबर पे, दूसरा वाला. राइजिंग ले लेते हैं या फॉलिंग ले लेते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. चलिए सेकंड केस, यहाँ पे चलो हम राइजिंग लेते हैं. लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमारा राइजिंग कब होगा? यहाँ पे कंडीशन है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व राइजिंग तब होगा जब आपका डिमांड ज़्यादा हो या सप्लाई ज़्यादा हो. एनीवन? कब होगा? जब आपका चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू चेंज, हाँ करेक्ट, चेंज इन सप्लाई हो तो यहाँ पे इक्वल रहेगा. एग्जैक्टली. तो पहले डिमांड सप्लाई नॉर्मल खींचे हम आराम से, यहाँ पे सप्लाई हो गया, यहाँ पे डिमांड हो गया. नाउ यू सी दैट योर डिमांड शिफ्टेड लाइक दिस. जब सपोज दैट कि ठंडी के दिन में क्या होगा, सपोज दैट जब ठंडी की दिन आती है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाता है, वुलन क्लॉथ का कंजम्पशन बढ़ जाता है, एंड समथिंग लाइक दैट. जब आपका फेस्टिवल का सीजन होता है तो मिल्क का क्या होता है, बढ़ जाता है कंजम्पशन, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, रिलेटिवली सप्लाई कम होता है. तो सप्लाई हम तुरंत इनपुट हमारे पास नहीं रहेगा ना, तो सप्लाई हमारा बढ़ेगा बट रिलेटिवली क्या होगा, लेस बढ़ेगा. तो सप्लाई हम थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे. डिमांड राइट वार्ड शिफ्ट हुआ, सप्लाई भी हमारा राइट वार्ड शिफ्ट होगा, बट रिलेटिवली थोड़ा लेस हुआ. ठीक है, तो D1 हमारा यहाँ रहा, D1 हमारा यहाँ रहा, D2 हमारा यहाँ रहा. फिर भाई डिमांड हमारा बढ़ गया. यू सी दैट डिमांड अगेन इंक्रीज, बट अगेन सप्लाई इंक्रीज वेरी लेस. सप्लाई इंक्रीज वेरी लेस. So this is S1, this is S2, this is S3, this is D1, this is D2, this is D3, and here you have E1 point, here you have E2 point, here you have E3 point. Now you join the all E2, E3. So here if you join E1, just one second, हाँ, if you join E1, E2 and E3, upward sloping जा रहा है. So this black line is your long run supply curve upward. It is also known as cost rising. इंक्रीजिंग कॉस्ट या कॉस्ट राइजिंग इंडस्ट्री या इंक्रीजिंग कॉस्ट राइजिंग. ठीक है, दैट इज ट्रू. व्हेन इट हैपेंस, व्हेन डिमांड इज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई. तो जब हम फर्म के केस में देखेंगे, अब यहाँ नीचे एक मैं डायग्राम फर्म का बना दे रहा हूँ. फर्म के केस में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ प्राइस बढ़ रहा है. यू सी दिस प्राइस वॉज दिस, देन प्राइस हैपेन दिस, देन अगेन प्राइस राइजेज. बट हियर यू सी दैट
इन दिस केस प्राइस वॉज कॉन्स्टेंट। तो जब भी मैं बताया हूँ फर्म में जब भी प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, एम आर कर्व शिफ्ट करेगा। सो प्राइस इज राइजिंग इफ योर एम आर वॉज हियर, फॉर MR1 प्राइस वॉज हियर, सो हियर MR विल शिफ्ट फॉर विच यू विल हैव प्राइस 2। तो इसका सिंपल सा मतलब है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो है रिलेटिवली सप्लाई कम बढ़ रहा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आपका एवरेज कॉस्ट था तो यह भी शिफ्ट करेगा, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आएगा, यहाँ पे देखिए प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, नो डाउट क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग Q1 to Q2, बट योर प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग P1 to P2। एक बार इसको आप अच्छे से डायग्राम को देख लेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम द बुक, ट्रस्ट मी। I am very honestly speaking, very genuinely speaking, be it anywhere, I don't know whether you have studied books or not, whosoever, be it me, be it your professors, be it any faculty, nobody can substitute books. All these are there in the books. I would suggest you to read Kostianis book, which is my all time favorite book for the market. It has to be supplemented with either Pindyck and Rubenfield or H.L. Ahuja. एक लास्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन आई विल लीव यू। थर्ड डायग्राम आप लोग अपने मन से एक बार ड्रॉ कीजिए कॉपी में। तो in this case what will happen, demand is greater than supply or supply is greater than demand, anyone? supply ज़्यादा हो जाएगा, just like tomato, if you remember last month tomato price was above 150 rupees, और अभी जो है टोमेटो का प्राइस 10 to 20 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया, सप्लाई अंधाधुन हो गया है, तो प्राइस फॉल होगा ही। यू सी दैट, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का सिंपल सा रूल है, दिस इज योर एस, दिस इज योर डिमांड, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगा। लो भाई सप्लाई हम इतना कर दिए, S1 इतना था, D1 इतना था, S1 इज योर दिस, S2 इज दिस, S3 इज दिस, दिस इज S2, दिस इज S3, क्लियर। और आपका डिमांड जो है, दिस इज डिमांड, यार टोमेटो इज देयर, व्हाई आई नीड टोमेटो, जस्ट आई वांट टू हैव सम सलाद और आई वांट टू हैव सम चटनी, तो ठीक है आपका D2 यह रहा। देन नेक्स्ट D3, थोड़ा D3 बढ़ाए, थोड़ा गेस्ट वगैरह आ गए थे तो थोड़ा सा हमारा डिमांड बढ़ा D3। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिस वन, S1 एंड D1 इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिस पॉइंट S2 एंड D2, थर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट S3 एंड D3। तीनों पॉइंट को मिला देना है, आपका इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। इसको हम ब्लैक से ले लेते हैं, चलिए रेड से लेते हैं। जस्ट यू ज्वाइन दिस पॉइंट, दिस दिस दिस, दिस इज योर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एंड दिस इज नॉन एज, एनीवन, दिस इज नॉन एज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो इस तरह से आपका लॉन्ग रन में अगर सप्लाई कर्व पूछा जाए तो तीन तरह के होंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, वी हैव 3। फर्स्ट, दिस इज योर सप्लाई कर्व। सेकेंड, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। लास्ट 5 मिनट, डोंट वरी, आई नो समबडी वुड बी हैंग्री इटसेल्फ। इफ पॉसिबल प्लीज मेक श्योर कि क्लास से पहले आप लोग लंच डिनर जो भी करना है कर लें। या फर्स्ट डायग्राम आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट, दिस इज नॉन एज कांस्टेंट लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट डायग्राम दैट वी जस्ट सॉ कि यहाँ से हल्का राइजिंग था, और थर्ड वी सॉ कि हल्का फॉलिंग था। एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास गाइज? Hope it was very easy to understand. One request I have, please read books. This is too much intense and rich content. What I taught you here na, it will take nearly 30 pages, nearly 30 pages to 40 pages from the book. So please read it all and I will update for the next class. और इसके बेसिस पे next class में I will try to cover monopoly. Then we will have comparative numerical from perfect competition as well as monopoly. चलिए एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, एक होमवर्क, दिस इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट इफ यू प्रीफर। आप लोग अपने मन से बताइए, एनी इफ यू नो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू, दिस एवरीबडी नोज। विद दिस हेल्प, एंड टी आर इज एवरीबडी नो पी इंटू क्यू, ओके। विद दिस हेल्प ऑफ टू इम्पॉर्टेंट लॉजिक, you try to just prove that, or you try to derive the relation between MR is equals to price into 1 minus 1 by elasticity. This proof we will see in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल सी, आई विल जस्ट प्रूफ इट। और एक मैं होमवर्क और दिया था कि स्लोप ऑफ, या तो शायद मैं कर भी दिया था, एक आप लोग रीचेक कर लेंगे कि स्लोप ऑफ जो होता है AR जो होगा वह ट्वाइस ऑफ MR होता है। एम आई राइट, और या मैं उल्टा लिख दिया? प्लीज एनीवन, प्लीज रिप्लाई गाइज। सही है, हाँ कुछ बोलिए आप लोग, मैं जानकर कभी कभी गलती लिख दूंगा। इसका प्रूफ हमने कर लिया था आई थिंक, या इसका प्रूफ आप लोग करके रखिएगा। समटाइम्स दे आस्क, इट इज नॉन एज द रिलेशन बिटवीन MR, AR एंड इलास्टिसिटी। यह है होमवर्क, इन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। स्लोप वाला नहीं हुआ था, स्लोप वाला लिखा था।
लिखा था हमने, किया भी था, नहीं किया था इसको हम करेंगे। चलिए दोनों होमवर्क में एक बार आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने बोला कि सर यू टोल्ड मी कि दिस इज द होमवर्क एंड व्हाट आई गिव यू होमवर्क, इवन यू इफ यू डू इट और नो, इफ यू गाइज डोंट डू, दिस इज द क्लास वर्क फॉर मी। तो अगर मैं नहीं करवाया था तो इसको मैं भी करवा दूंगा दोबारा, डोंट वरी। एक बार आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे एंड देन वी विल हैव कंपैरेटिव न्यूमेरिकल मोनोपोली से एंड परफेक्ट कंपटीशन से। फिर इसके बाद जब परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली हो जाएगा फिर हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। एंड आफ्टर मोनोपोलिस्टिक वी विल हैव ओलिगोपोली। और अब काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग इनटू मार्केट विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। एवरी टॉपिक पे हम दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे। फिर जब मोनोपोली हो जाएगा तो हमारा डेड वेट लॉस पे न्यूमेरिकल होगा एंड देयर इटसेल्फ आई विल डू कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल। पैरेलली योर मैथ फैकल्टी विल टीच इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफ्रेंसिएशन। तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जब आप जान जाओगे तो ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जो कर्व होता है, कर्व वाला, लीनियर तो वेरी इजी ना, लीनियर वाला इज वेरी इजी, बट वंस इट इज कर्व वाला लाइक दिस, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा फंक्शन में, तो वी विल डू दैट। ओके, साइनिंग ऑफ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ मोनोपोली एंड द प्रूफ ऑफ दिस वन TR AR MR वाला this relation, and slope of MR is equals to how, twice to the slope of MR. Okay, good night everybody. थैंक यू सर। Thank you, good night.